welcome all the participants, other participant scholars on behalf of Heritage Society. I am hopeful for very prolific sessions as the subject on which a series of lectures have to be delivered are significant in terms of developing understanding just not of Indian art and architecture, rather also on a very profound philosophical background perspective that Indian architecture has. We have to discuss mainly the metaphysics of Hindu temple, how it has to be understood in metaphysical and also metaphorical terms. So rather than presenting in succinct form the history and evolution of temple, I will start speaking on what temple is philosophically as a structure, what it is in a spiritual sense, what is the symbology of Indian temple, and most importantly, how it reflects the understanding of Indians about universe, origin of universe. I mean to say, a temple is based on a very profound philosophical base that is, in fact, a very broad understanding of cosmogony, cosmological thought that evolved in Vedas in time immemorial, and which were later on imbued in the canonical literature, classical literature on architecture, namely Ishan Vishwa Guru Deva Paddhati. Ishan Vishwa Guru Deva Paddhati, one of the earliest texts available in South India. A few decades back, Vastu Sutropanishad, Vastu Sutropanishad, a very important text with the name Upanishad, was discovered. It doesn't talk about temples, but it discusses fire altar, Vedika, and the Vedic sacrificial post called Yupa. Vedic sacrificial post Yupa. This is the earliest available information that we have on a sacred structure, on a place which is sanctified for the purpose of yajna
In later course, Mayamatam, Mansaram, Vastushar Mandan, many other texts. We have 18 important texts on architecture in our country, including work by Narad called Narad Silp, and a text by great scholar Naganjit. Is another marvelous work on art and architecture. And there are agamic texts, Vaikhanash Agam, Kalikagam, Kamikagam, Mukutagam. They all invariably speak about sacred architecture of India. Therefore, we all must understand first what is temple as a structure in etymological sense, in philosophical sense, in cosmological sense, and in spiritual sense. मंदिर और भारतीय आध्यात्म विज्ञान का क्या अंतर संबंध है, इसकी विवक्षा होनी चाहिए. सारे के सारे लोग जो हैं वो अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो मेरे लिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दर्पण में अपना चेहरा देख रहा हूं और बोल रहा हूं. अरे आप विजुअल होंगे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा तो बेहतर इंटरेक्शन होगा ना. डॉक्टर रुचि भी अपियर हुई, प्रियंका जी, दिलीप जी, आप लोगों को क्या कठिनाई है भाई? मुझे गुड मोदी जी इवनिंग के थे. गुड इवनिंग. ये तो अच्छा है आपसे आंखें चार हों. सागर पता नहीं कौन है, वो भी गायब है. So we are actually trying to understand what is the cosmological and philosophical thought which played very dynamic role in making of temples. तो सबसे पहले हम लोग मंदिर किसे कहते हैं यही समझते हैं. The literal meaning, metaphorical meaning, philosophical meaning, indicative meaning, denotative meaning, all different meanings we will have to understand. What is mandir? Mandaram iva mandiram. जो मंदार की तरह दिखाई पड़ता है. And you know what is Mandar? It is mountainous abode of Lord Vishnu. Mountainous abode of Lord Vishnu is Mandara. And मंदिर क्या है? Which appears as Mandar. Philosophically, temple is mountainous abode of Vishnu, or it is mountainous abode of Shiva. You should not be surprised to know all the best of the temples, most magnificent temples, known for their grandeur, known for their grandiose, known for their spectacular spectacle and sculptural schemata. They are named after Kailash. शिव के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं भारतवर्ष में, उनके नामों की विवक्षा कीजिए. वो क्या नाम है? कैलाश कहां है? एलोरा में.
कैलाशनाथ कहाँ है? कांचीपुरम में. एंड द ग्रेट बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर is known as दक्षिण मेरु वितंक. दक्षिण मेरु वितंक, कैलाश पर्वत ऑफ दक्षिण देश, साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया. Mandir is not a very common term in our canonical literature. This name became very famous after the Maratha period. Mandiram is a term which occurs in classical Vastu text for a structure made of stone. A structure made of stone is called Mandiram. It is the indicative meaning of it. हमारे यहां शब्द की लक्षणा, व्यंजना, अविधा सब महत्वपूर्ण होती है. तो जब हम मंदिर कहते हैं तो उसका मतलब है जो मंदार पर्वत के सदृश दृष्ट होता है, दृष्टिगत होता है, वो मंदिर है. अदरवाइज वी हैव ए टर्म देवालय. व्हाट वी कॉल देव आलय. Friends, you may have understanding that alay means abode, a house, a residence. प्रियंका जी का रेजिडेंस उनका आलय है. जब वो उसके आभ्यंतर में जाती है ना, तो वहां लय है. आभ्यंतरे लयम यत्र, जिसके आभ्यंतर में एक लय है, एक म्यूजिक है. देयर इज ए रिदम, देयर इज ए म्यूजिक. घर के बाहर म्यूजिक कम है, बेसुरा है. अब देव कौन है? यह दिव्य सह देव. जो दिव्य है वह देवता है. सन इज गॉड बिकॉज सन इज दिव्य. वरुणा इज दिव्य, सो वरुण इज गॉड. इंद्र, द फेनोमेना ऑफ रेन, इज ल्यूमिनस. दिव्य है इसलिए देवता है. मरुत दिव्य है, उषा दिव्य है, सविता दिव्य है, आदित्य दिव्य है, विष्णु दिव्य है, इसलिए सब देवता है. तो एक नाम है देवालय. आप कह सकते हैं एबोर्ड ऑफ गॉड. It will be a very, very simple meaning. Another term is there, Deva Nilayam. It is also found in our literature. Deva Nilayam. देव तो आप समझ गए. अब ये नीलयम में क्या है? लय तो यहां भी है, लय तो यहां भी है. नी क्यों आ गया बाबा? नी आया, निहसरित होता है. नदी की ध्वनि सुनी है आपने? कलकल ध्वनि, यमुना जी की, गंगा जी की, व्यास की ध्वनि. दिस इज कॉस्मिक रिदम, इंपल्स. निहसरित हो रही है. एक लय का निहसरित होना, निकलना जहां संभव है. देव निलयम में, देवता के मंदिर में एक संगीत है. अब आप इस संगीत का मतलब ये मत समझिए जो संगीत आप समझ रहे हैं, ढोलक वोलक वाद्य यंत्र, वो मैं नहीं कह रहा हूं. इट हैज ए डीपर मीनिंग. म्यूजिक इज डिलाइटिंग, music is enlightening, music is mesmerizing, music is exhilarating, music is thrilling. So मंदिर जब आप जाते हैं तो वहां की अप्रतिम शांति का जो संगीत है, अप्रतिम शांति का जो संगीत है,
वह देवता की ध्वनि है, वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, उसको सुनने के लिए जाते हैं। उसका नाम देव निलयम है, एंड इट इज रेक्टेंगुलर इन फॉर्म, सो इट इज देवायतन। देवायतन, एज इट इज रेक्टेंगुलर इन फॉर्म। भारतीय परंपरा में मंदिर को देवालयम, देवनिलयम और देवायतन, इन तीन महत्वपूर्ण नामों से जाना जाता रहा है। इसी नाम से उसको हम संबोधित करते हैं। पर अब जरा हम जानते हैं कि मंदिर क्या है। व्हाट इज ए टेम्पल? सो शास्त्राज से टेम्पल इज ए मिनिएचर कॉस्मोस। व्हाट इज इट? टेम्पल इज ए मिनिएचर कॉस्मोस। यह लघु ब्रह्मांड है। मंदिर जो है वो क्या है? लघु ब्रह्मांड है। इट इज अ यूनिवर्स, इट इज अ स्मॉल यूनिवर्स, इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्स, इट सिंबलाइजेस द यूनिवर्स। मंदिर यूनिवर्स है। देखिए यूनिवर्स कैसे है। यूनिवर्स में एक हिरण्यगर्भ है। यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासित सदाधार पृथ्वीं द्यामुत्तमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भ है, एक गोल्डन वूम है, एक स्वर्णिम गर्भ है। उस स्वर्णिम गर्भ से इस सृष्टि का जन्म हुआ था। इन वेदास वी हैव हिरण्यगर्भ सूक्त। इसी हिरण्य गर्भ से भू भुवः और स्वः, भू भुवः और स्वः तीन लोकों का जन्म हुआ। और इसके मूल में है एक गर्भ। द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इन ए टेम्पल इज व्हाट? You all may be knowing. The most sacred place in a temple is Garbhagriha. Garbhagriha. Sanctum Sanctorum. What we call Sanctum Sanctorum. Garbhagriha is the most sacred place in a temple. अच्छा, गर्भ किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। गर्भ इज ऑल्सो ए यूनिवर्स, है या नहीं है? गर्भ यूनिवर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। इट इज ए वोम, इट इज ए यूनिवर्स, इट इज ए मिनिएचर कॉस्मोस। गा गमनार्थे गा, अर मीन्स मूवमेंट, भा मीन्स भास्वर। देयर इज ए लाइट, देयर इज ए मूवमेंट विद इन इट, सो इट इज गर्भ। गर्भ के अंदर गति है, लय है, सृजन है, पोषण है। वह एक प्रकृति है, एक यूनिवर्स है। हम लोग इसी लघु ब्रह्मांड से जन्म लेते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं। लेते हैं या नहीं लेते हैं? है ना? तो मंदिर में भी गर्भगृह है। देयर इज ए गर्भगृह इन टेम्पल। यूनिवर्स ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए गोल्डन गर्भ, गोल्डन वोम, हिरण्य गर्भ। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा संबंध आपको दिख रहा होगा। टेम्पल इज ए बॉडी, टेम्पल इज ए बॉडी, टेम्पल इज ए यूनिवर्स, and within that there is a life force. Garbhagriha means where there is a life force. जहां एक
जीवनी शक्ति है, वही गर्भ है। तो मंदिर में भी एक गर्भगृह है, यानी वहां एक जीवन की शक्ति है। देयर इज ए पावर ऑफ प्रोक्रिएशन, पावर ऑफ प्रोजेनी, पावर ऑफ क्रिएशन विद इन द टेम्पल, एंड इट इज इन द गर्भगृह। देहो देवालय प्रोक्त, यह जो देह है ना, अभी मैंने देवालय का अर्थ बताया था। देहो देवालय प्रोक्त, जीवो देव सनातन। इस देह के अंदर भी एक सनातन जीव है। There is an immanent reality, enduring reality, absolute reality within this body. This body is also a temple. This body is also a temple. देहो देवालय प्रोक्तः तत् स्थितो जीवः सनातन। इसके अंदर एक सनातन जीव है, एक सनातन आत्मा है, एक शाश्वत आत्मा है। मंदिर के अंदर भी एक शाश्वत आत्मा है, क्योंकि मंदिर इज ऑल्सो ए बॉडी, टेम्पल इज ऑल्सो ए बॉडी। एंड बॉडी ऑफ हुम? बॉडी ऑफ हुम? विराट पुरुष। मंदिर किसका शरीर है? टेम्पल इज बॉडी ऑफ विराट पुरुष। पुरुष, हु इज पुरुष? पुरुष का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। मृणालिनी जी, आदेश हो तो समझें। जी जरूर जरूर। हाँ, पुरुष का मतलब वो नहीं है जो हमारे घर में एक पुरुष रहता है। पुरुष वो है जो हमारे अंदर रहता है, इस पुर के अंदर रहता है। पुरम शयति सह पुरुष, स एवेदम पुरुष, सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात। वो एक होते हुए भी अनंत है, अनंत आंखों वाला, अनंत पैरों वाला, अगणित पैरों और अगणित आंखों वाला है वह पुरुष। निर्गुणो निष्क्रियो अनंतः, जो निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरवयव है, वो पुरुष है। शरीर प्रकृति है और आत्मा पुरुष है। पुरुष आत्मा ही है। तो इस शरीर में जो पुरुष है, और मंदिर में भी एक पुरुष है। टेम्पल इज ए बॉडी and temple has supreme soul within the garbhagriha in form or with the name Shiva, Vishnu, Shakti, or there can be any other name. मंदिर के अंदर भी ऐसा है। प्रसादम, मंदिर का एक और नाम है देव प्रासादम। क्या नाम है? देव प्रासाद नाम है। अच्छा, अपने हमारे यहां बिहार में हर दूसरे व्यक्ति का नाम प्रसाद रहता है। राजेश प्रसाद, लालमोहन प्रसाद, शनिचर प्रसाद। हम लोग जानते ही नहीं है कि इनका नाम प्रसाद क्यों है। उनका नाम प्रसाद इसलिए है कि ही इज नॉट ए नोमैड, ही इज ए हाउस होल्डर। प्रसाद है, इनके पास घर है। घर है मतलब मकान भी है और पत्नी भी है, दोनों है। प्रसाद है ये। लेकिन प्रसाद का मतलब क्या है? इटिमोलॉजिकल मीनिंग मनः प्रसीदति इति प्रसादम। मनः प्रसीदति, मन को जो प्रसीदित करता है, प्रसन्न कर देता है, वह प्रसाद है। लड्डू से हनुमान जी थोड़े ही ना प्रसन्न होते हैं, है ना। बाबा थोड़ी लड्डू खाते हैं। गणेश जी का झूठ ही नाम मोदक प्रिय रखा हुआ है। सच तो यह है कि प्रसन्न हम होते हैं। हम लोग मंदिर को भी देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। टेम्पल्स हैव बीन मेड टू बी व्यूड, टू बी रेलिस्ट,
टू बी अप्रिशिएटेड। उनको बनाया गया है किस लिए? आपका मन प्रशीदित हो जाए, एकदम भाव विभोर हो जाए, देख के खुश हो जाए। अभी वाले मंदिर जैसे नहीं। प्राचीन मंदिर बनाने की अपनी परंपरा है। तो क्या कहते हैं सो सुनिए, प्रासादम पुरुषम, प्रासाद पुरुष ही है। द बॉडी ऑफ टेम्पल इज बॉडी ऑफ द विराट पुरुषा। पूजयेता मंत्र विद्महे, पूजयेता मंत्र विद्मः। मंत्र से उसी पुरुष की पूजा होती है। कौन से वाला पुरुष? ये लड़का जो अभी सागर नाम का पुरुष दिखा, ये नहीं। ये सब तो संसार के क्षुद्र पुरुष हैं। असली पुरुष कौन है? विष्णु है, शिव है। वो पुरुष जिसकी परिचर्चा वेदों में है। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रसादम पुरुषम मत्वा पूजयेत मंत्र विद्महे। अब ये मंत्र कौन है? ये वो पुरुष है जिसको मंत्र शक्ति से जाना जाता है। मंत्र क्या है ये तो आप लोग जानते ही जानते हैं ना, कि नहीं जानते? जो मनन से, जिसके मनन से मन का त्राण हो जाए। ये डॉक्टर रुचि जी किसी को भाषण दे रही हैं वहां बैठ के। हम अलाव ही नहीं करते किसी को इधर उधर करने के लिए। मंत्र किसको कहते हैं? ये विश नाम की जो लड़की है बताएगी। मंत्र किसको कहते हैं? जिसके मनन से त्राण मिले, which leads you towards salvation, which is enlightening, which is enlightening. It is mantra. तो मंत्र से पूजा होती है। अच्छा, और ब्रह्मांड का, वेद का सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है? रत्ना जी आप बता रही हैं क्या? तो अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, बताइए सर आप। हाँ। सर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः अच्छा, तत्सवितुर्वरेण्यं आपको भर्गो याद भी देवस्य धीमहि। है, बहुत कुछ। अरे बाप रे बाप, लेकिन अर्थ बताइए तो जरा सा। सर अर्थ नहीं गायत्री मालूम मंत्र, है। यही तो गड़बड़ है, क्योंकि तो साइंस का फॉर्मूला है। बढ़िया कहा आपने कि ये गायत्री मंत्र है, गाने के लिए बनाया गया है। जी आगे में लिखा हुआ है कि गाइएगा तो त्राण मिलेगा इसको जी गाने से। जी नो सर मंत्र इज सो प्योर, इट इज द प्योरेस्ट, द सबलाइमेस्ट, द मोस्ट सब्सटेंशियल, spiritually most vibrant mantra of the Vedas. The sublimest, the supreme, the most refined, the purest, spiritually most vibrant mantra is Gayatri Mantra. और मंदिर में गायत्री मंत्र है। मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? आप मंदिर गई होंगी ना रत्ना जी? जी सर। तो वहां गायत्री मंत्र मिला? सर सब लोग तो भजन कीर्तन करते हैं। अरे भजन में क्या रखा है? भजन वालों को क्या मिलेगा? थोड़ा ही बहुत मिलेगा ना। मंत्र वाला बनना है, भजन में क्या रखा है? प्रियंका जी आपको गायत्री मंत्र दिखा मंदिर में? कौन सा मंदिर देखी है आप? तभी उसी के अनुसार बताएंगे। कोई मंदिर नहीं गई? कोई मंदिर ही नहीं गई? कमाल है रे बाबा। कहाँ रहती हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑन कीजिए। नमस्ते सर। जो आसपास के नमस्ते। छोटे मोटे मंदिर है बस वहीं जाते हैं। और रहती कहाँ हैं आप? सर दिल्ली। दिल्ली में रहती हैं, और आसपास के छोटे छोटे मंदिर आप गई? अच्छा, जी। बताइए।
और आपको गायत्री मंत्र मंदिर में दिखा ही नहीं। चलिए सर देखिए, दीवार रत्ना जी। दीवार पे लिखा रहता है। हाँ, वो वाला नहीं चाहिए ना मुझे, वो तो लिखा नहीं ही सर रहता है, वो तो हमें पता था कि आप वही बोलेंगी। हमें जी। वो नहीं दिखता है, वो दिखना ही नहीं। देखिए, जो गायत्री मंत्र में कहा गया है, इन्होंने अभी रत्ना जी ने बताया, ओम। ओम, व्हाट इज ओम? नाद, नाद, ओम प्रणवम मंत्रम, ओम प्रथमो नादः, ओम प्रथम नाद है, ओम प्रथम ध्वनि है। इसलिए मंत्र के पहले तो आता ही आता है ना, उसके बिना कोई मंत्र मंत्र होता नहीं। लेकिन आगे बड़ी वैज्ञानिक बात लिखी हुई है, ओम भूर भुवः स्वः। देयर आर थ्री स्फीयर्स इन द वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। भू, भुवः एंड स्वः। टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड, हम लोग जहां रहते हैं, बायोस्फीयर जिसमें हम लोग जीते हैं, दिल्ली जिसमें है आपकी, महान दिल्ली, प्रदूषण की रानी, विचारों की दूषण की जननी। तो इस दिल्ली में, जिसके लिए दिनकर जी ने लिख दिया, दिल्ली हाय कलंक की भाषा। हे भगवान, 2 दिन के बॉल डांस में इतनी हुई बेपानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली। जय हो दिल्ली। दिल्ली में मंदिर ही नहीं, बढ़िया, जहां गायत्री दिखे, मंत्र दिखे। तो भूर भुवः स्वः, ये 3 लोक हैं, दीज आर द 3 स्फीयर्स। भू, टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड, भुवः स्पेस, एंड स्वः द वर्ल्ड ऑफ गैलेक्सीज वेयर देयर इज सन। ये जो 3 लोक हैं, टेम्पल हैज 3 डिविजन्स। द लोएस्ट पार्ट इज भू, central part is bhuvaha, and the large curvilinear spire, the superstructure of the temple is swaha. Temple is swaha. मंदिर का सबसे निचला भाग क्या होता है? भू, उसके बाद भुवः, उसके बाद स्वः। 3 भाग होते हैं। और आगे क्या कहता है? भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम। सवितुर पता है कौन है? कौन बताएगा? छठ पूजा देखा है किसी ने? मृणालिनी जी ने देखा है। कहाँ देखी हैं आप? सर बिहार। अच्छा, बिहार में देखी हैं। तो छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? सर सूर्य की आराधना की जाती है। हाँ, वो तो आप कहेंगे ही, क्योंकि लोगों ने इतना लिख दिया है, सूर्य पूजा छठ पूजा सब एक है। तो सूर्य के तो बहुत फॉर्म्स हैं ना जी। मृणालिनी जी। जी सर। सूर्य का जो फॉर्म हम लोग छठ पूजा में पूजते हैं, उनका नाम है सविता, सवितुर वरेण्यम। वही वरेण्यम, वरेण्यम। वरेण्यम मतलब जो वर्ण करने के योग्य हो। बिहार में कहते हैं ना, वर बाबू, जी सर। कहते हैं जो वर्ण के योग्य हो, श्रेष्ठ हो। जी। मूर्ख का तो विवाह होना ही नहीं चाहिए, श्रेष्ठ का ही विवाह होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम है वर। तो कह रहे सवितुर वरेण्यम। सवितुर कौन है? द गॉडेस, the power of procreation, the phenomena of procreation which exist in the dawn and dusk, during the evening and the morning. सायं काल और प्रातः काल सूर्य की जो उर्वरा शक्ति है, उस उर्वरा शक्ति का नाम सविता है। और इसलिए छठ पूजा किस देवता की उपासना है? सूर्य के किस रूप की उपासना है? सवितुर रूप की उपासना है। इसीलिए शाम को होता है। राजनीतिक लोग वाले बड़ा अच्छा अच्छा भाषण देते हैं ना दिल्ली में छठ पूजा में, कि बिहार के लोग वो लोग हैं जो डूबते हुए की भी पूजा करते हैं। अरे मूर्ख, वाह। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। अच्छा, ये भर्गो क्या है पता है? फिजन और फ्यूजन समझते हैं?
The world has been created because of constant fission, nuclear fission. भर्गो भर्जनाथ भर्जनाथ भार्गव ऋषि हैं जिन्होंने इस भर्जन की प्रक्रिया को समझ लिया था. प्रचोदयात, that acts as a propellant, the best of the catalyst, the best of the simulating energy, the seminal force, the primordial force, the supreme force, the primordial source of energy. गायत्री मंत्र कह रहा है, I worship that primordial seminal force, supernal force, supreme force of energy that has created the three worlds, Bhu, Bhuva and Swaha. Temple is structurally the reflection of the Vedic mantra, Vedic cosmology, Vedic cosmology. Temple is interlinked to Vedic cosmology. अच्छा, वेद का मतलब क्या होता है? Who will tell me? वेद का मतलब क्या होता है? सर ज्ञान. वाह, बहुत अच्छा. वेद का मतलब ज्ञान होता है. वीडियो देखा है आपने? वीडियो विद धातु से बना है. ज्ञान नहीं होता है, दृष्ट ज्ञान होता है. नॉलेज बाय विजुअलाइजिंग समथिंग, प्रत्यक्ष ज्ञानम. ज्ञान नहीं है. ज्ञान अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है. वेद अनुभव का ज्ञान नहीं, अनुभूति जन्य ज्ञान है. दृष्टा ऋषियो मंत्र दृष्टा रहा. ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं, उन्होंने देखा है. It is knowledge which is based on visual experience. It is not just intuitive. It is just not experiential. It is visual knowledge. ये दृष्ट ज्ञान है. अच्छा, वैदिक काल में जिस पे हवन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेदिका. कहते हैं ना, वेदिका मीन्स फायर अल्टर. An altar that symbolizes knowledge. Vedika. Temple is made on a platform which is called Vedika. Temple is made on a platform temple is made on a platform which is called Vedika. So temple is what? Temple is a fire altar. मंदिर क्या है? मंदिर का अधिष्ठान, जिस प्लेटफॉर्म पे मंदिर बना है उसको हम लोग वेदिका कहते हैं. कभी मंदिर को दूर से ध्यान से आप देखें. अब प्रियंका जी ने ऐतिहासिक मंदिर देखा ही नहीं है, दिल्ली से बाहर गई ही नहीं. एक बार 4-5 लड़की हमारे साथ टूर में जा रही थी, वो ट्रेन में थरथर कांपने लगी क्योंकि ट्रेन में ही पहली बार चढ़ी थी दिल्ली की लड़कियां. गई नहीं थी बाहर. जब तक मेट्रो आया नहीं दिल्ली में, लोग ऐसे सवारी में चढ़े ही नहीं थे, मंदिर भी नहीं देखे थे. अब कैसे समझेंगी? आपने लोहड़ी देखा होगा, आग को जलते देखा होगा. When you do the yajna, what happens? The flickering flames of fire, they create a form which is curvilinear. क्योंकि सब कुछ अग्नि है. हमारे वेदों में सबसे बड़ा महत्व जो है इंद्र को तो दिया गया है. उसका कारण है कि वर्षा होगी नहीं तो कृषि कैसे होगी. लेकिन सारा दर्शन अग्नि से जुड़ा हुआ है. ओम अग्नि, ओम अग्नि, ओम. जो हम कहते हैं अग्नि इड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधाततम, होतारम रत्नधाततम. ओम अग्नि इड़े पुरोहितम. पुरोहित को सबसे पहले अग्नि की प्राप्ति हो.
ओम अग्नि नय सुपथाराय अश्वाना विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो अधि अस्मद जोहरामणे नो भूष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। ये जो अग्नि है वही विश्व का विज्ञान है। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विद्वान लोग जानते हैं कि दिस सेमिनल फोर्स कॉल्ड अग्नि, इट इज a matter of supreme understanding. Once you understand Agni, you know the cosmos, you know the universe. Agni is an enigma, the biggest enigma. अग्नि से बड़ा रहस्य कोई नहीं है। इसी अग्नि जब गैसियस फॉर्म में जाता है तो जल पैदा हो जाता है, इसी जल से पृथ्वी का जन्म हुआ है। अग्नि से रहस्यमय कौन है? तो इस अग्नि के सूक्त के मंत्र हैं हमारे, वो बड़े वैज्ञानिक मंत्र हैं, और मंदिर का अग्नि से बहुत गहरा संबंध है। टेम्पल, वन पार्ट ऑफ टेम्पल इज वेदिका, मीन्स फायर अल्टर, एंड होल टेम्पल सिंबलाइजेस कॉस्मिक फायर गोइंग अपवर्ड इन द स्काई, अपवर्ड इन द स्काई। ये अग्नि का उत्प्रवाह है, उत्प्रवाह है, ऊपर की ओर जा रहा है। इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फायर। क्यों है ऐसा? बिकॉज द वर्ल्ड इज लीन इन इट, इम्ब्यूड इन इट। टेम्पल, गर्भगृह हैज जनरली what? Is there any statue? Sometimes there may be a statue, there may be an icon, but generally there is a linga. आमतौर पे क्या है वहां? लिंग है। लिंग का मतलब जिसमें लीन है और जिससे गमन होता है। किसका? ऊर्जा का, ऊर्जा का। लीनम गमनम करोति, जो लीन है, जिसके थ्रू गमन होता है, गमन होता है, वो लिंग है। किसका गमन होता है? ऊर्जा का, सृजन का, ज्योति का। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, लाइट इमिटेड बाय सन, दिस फिनोमिना फॉर्म्स ए ज्योतिर्लिंगा। The temple is also lingam. Temple is also lingam. Vimanam sthula lingam sasukshma lingam sadasivam. Vimanam sthula lingam sasukshma lingam sadasivam. यही जो लिंग है, प्रकाश का नीचे आना और प्रकाश का ऊपर आना, ये जो प्रकाश का इनफ्लो और आउटफ्लो है, यही सृष्टि का कारण है। द पावर ऑफ प्रोजेनी फ्लोज थ्रू दिस लाइट, फ्लोज थ्रू दिस लाइट, फ्लोज थ्रू दिस लाइट। लिंगा कैरीज लाइफ फोर्स। टेम्पल इज सिंबॉलिकली विराट पुरुष एंड टेम्पल इज ऑल्सो लिंगम। मंदिर साक्षात स्वयं शिव का लिंग भी है, सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में भी। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि मंदिर जब शरीर है तो ये शरीर बना कैसे, ये भी जानना जरूरी है। आत्मा तो किसी तत्व का बना हुआ नहीं है, जो भी बना हुआ है वह शरीर ही बना हुआ है। शरीर में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पहला आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। These are the 5 subliminal elements. The cosmos, the nature, the prakriti is
made of all these 5 elements. And so temple represents these 5 elements. मंदिर में भू भुवः स्वः तो दिख गया, मंदिर का आधार वेदिका भू है, गर्भगृह भुवः है और शिखर स्वः है। ये देख लिया आपने। अब ये जो मंदिर है ये 5 एलिमेंट्स का बना है। कैसे समझेंगे कि 5 एलिमेंट्स है मंदिर में? How are 5 elements, subliminal elements are represented in a Hindu temple? तो हम लोग जब मंदिर जाते हैं ना तो वहां एक घंटा होता है, घंटा। हम लोग जाते के साथ ही उसको टन टनाटन बजा देते हैं। बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? आपने बजाया है ना? घंटी जाते के साथ बजाते हैं। व्हाट इज घंटी? इट इज टाइम एंड स्पेस कॉन्टिन्यूम। घंटा मीन्स टाइम। इट इज राउंडल इन शेप। इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्स। साधारण नहीं है घंटी। एंड यू आर क्रिएटिंग ध्वनि, ध्वनि, ध्वनन, ध्वनन पैदा कर रहे हैं आप। अच्छा, तो इससे क्या हो गया? आकाश समझते हैं? आकाश क्या है? शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुणकम आकाशम। मैं शब्द बोल रहा हूं और आप तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि आकाश है। आकाश का गुण शब्द को धारण करना है। आकाश के माध्यम से शब्द गमन करता है। तो जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां 3 तरह की ध्वनि होनी चाहिए, लेकिन आजकल 3 तरह की ध्वनि कम दिखाई पड़ती है, तरह तरह की ध्वनि होते रहती है। ये 3 ध्वनियां क्या है? घंट ध्वनि, मंत्र ध्वनि एंड शंख ध्वनि। घंट ध्वनि, मंत्र ध्वनि और शंख ध्वनि। शंख में स्पेस है ना, आकाश है ना। वायु मूव्स थ्रू आकाश, मूव्स थ्रू आकाश। In the interior of temple there is a आकाश, चिदाकाश, चिदाकाश। अंदर चिदाकाश है, शिव इसी चिदाकाश में रहता है। Where Shiva resides, चिदाकाश। The inner space of temple is चिदाकाश, the outer space of temple is भूताकाश। Just see, न भूतो न अग्नि न चा पंचवायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। विभु व्यापकम, शिवा इज द यूनिवर्स। विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ही इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। And he Chidakash, the space of conscience, a space of conscience. The image of Shiva is within the Chidakash of the temple, and the space denoted by the exterior wall of temple is Bhutakash. उस भूताकाश पर लोग नाच रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। मैथुन मूर्ति भी है, नायिका भी है, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, किन्नर भी है, देवता भी है, पशु भी है, पुष्प भी है, कमल भी है, अष्टमांगलिक लक्षण भी है। दैट इज द होल वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज देयर ऑन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। और मंदिर के अंदर क्या है? शिवलिंग है, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। हो गया। सो मंदिर में 2 आकाश हैं। अब कहेंगे वायु कैसे मंदिर के द्वारा प्रदर्शित है कि मंदिर वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, मंदिर के ऊपर एक झंडा लगता है ना, हनुमान जी के मंदिर पे तो देखा ही होगा आपने।
मंदिर का एक ध्वज होना चाहिए, क्योंकि टेम्पल इज ए चैरियट, टेम्पल इज ऑल्सो रथा, टेम्पल इज ए विमाना, इट इज ऑल्सो द व्हीकल ऑफ द गॉड। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो झंडा लगा रहता है उससे क्या पता चलता है? ध्वनन द प्रेजेंस ऑफ वायु, presence of vayu on the walls of temples. You may find depiction of Khechar Gandharva, flying celestials, flying celestials। मंदिर के ऊपर आपको वायु में तैरते हुए गंधर्वों की मूर्ति होगी। इनकी मूर्ति होगी? गंधर्व की मूर्ति होगी। गंधर्व समझते हैं? अर्व मतलब गति, गंध मतलब स्मेल। तो कहीं से स्मेल दूसरे जगह कैसे पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? वायु के द्वारा। तो वायु का डिपिक्शन कैसे हुआ है मंदिर के ऊपर? खेचर गंधर्व। खा मतलब आकाश, खग बोलते हैं ना, खग मतलब चिड़िया, खा में गमन करने वाली, का मने पृथ्वी, खा मतलब अंतरिक्ष, गा मतलब गगन, आकाश। गगन उससे भी ऊपर है, खा से ऊपर ग है। यह है कखा ग भारत का। लेकिन आजकल हम लोग का मने कौआ, खा मने खरगोश, ग मतलब गधा पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं। तो कखा ग आप समझ गए मंदिर का। मंदिर में वायु तत्व का भी निरूपण है। और उसके बाद मंदिर में अग्नि तत्व भी है। कैसे अग्नि तत्व है? नो रिचुअल कैन बी परफॉर्म विदाउट फायर। मंदिर के गर्भगृह में दीपक तो जलाना ही पड़ता है कम से कम। दीपक जो है, आप पूजा के मंत्र में क्या कहते हैं? ज्योति सूर्य, सूर्यो ज्योति, ज्योति वर्चः, सूर्यो वर्चः, अग्नि ज्योति, ज्योतिरग्नि, अग्नि सूर्यो, सूर्यो अग्नि, अग्नि वर्चो स्वाहा। दिस फायर इज व्हाट? दिस ज्योति इज व्हाट? ये ज्योति क्या है? अग्नि है। और अग्नि क्या है? सूर्य अग्नि है। तो सूर्य ही ज्योति है, सूर्य ही अग्नि है। और ये जो दीपक है, ये ज्योति स्वरूप होने से यह सूर्य अर्थात अग्नि का ही प्रतिनिधित्व करता है। दीपक हम लोग इसीलिए जलाते हैं कि यह दीपक अग्नि का, सूर्य का, ज्योति का प्रतीक है। सो टेम्पल has the third important element, it is अग्नि। और अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? किसकी उत्पत्ति हुई? जल से। अरे जल से ही तो इतना बिजली बल्ब जल रहा है, तो उसमें अग्नि है तभी तो है ना। जब अग्नि अपने गैसियस फॉर्म में आया तो उससे जल की उत्पत्ति हो गई। जल मतलब जा मतलब जन्म, ला मतलब लय होना, जिससे जन्म का होना सिद्ध होता हो। हम लोग पानी कहते हैं ना, पानीयम, जो पाने के योग्य है, जो पीने के योग्य है, इसलिए हम लोग कहते हैं पानी पिलाओ, है ना, वरना जल है। तो मंदिर में जल कैसे रिप्रेजेंटेड है, इसे भी समझना होगा। मंदिर में पुष्करणी होना चाहिए। There must be a sacred pond. You can find images of Ganga and Jamuna on the Dwar Shakha of the temple. It is a very important feature of a temple. Ganga and Yamuna, these two mother goddesses, river goddesses, are represented on the wall of temple. Makarvahini Ganga and Kachapavahini Yamuna. आप जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार पे जाते हैं ना, तो पहली इमेज क्या दिखाई पड़ती है? एक गंगा की और दूसरी यमुना की। और इनको देखकर आपके नेत्र तृप्त हो जाते हैं। नेत्र स्नान हो गया,
गंगा और यमुना का स्नान हो गया, दोनों मातृ देवियों को आपने देख लिया। Even lotus depicted on temple represents water. पूर्ण घट है ना, पूर्ण घट कॉल्ड कलश, कलश, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वाटर। घटवल्लरी रिप्रेजेंट्स वाटर। और मंदिर के सबसे ऊपर में भी जल होता है, देखा आपने, कलश होता है ना सबसे ऊपर, और मंदिर के स्तंभ के नीचे भी कलश बना होता है, और स्तंभ के ऊपर भी कलश बना होता है। सन्नोर्देवी अभिष्टया आपो भवन्तु पीते संज्ञोरय अभिश्रवन्तु नः। There is water, that is celestial water. There is water which is present in vayu. There is water which is present on the earth or in the earth. जल तीनों रूपों में विद्यमान है, ये तीनों ही रूप में वंदनीय है, तीनों रूप में वंदनीय है। Water is represented by sacred pond. Water is represented by what? Ganga Yamuna images. Water is represented by lotus. Water is represented by कलश। कलश में तो सब कुछ है ना, कलश में सब कुछ है, इसीलिए जहां मंदिर नहीं है वहां कलश स्थापना करके पूजा कर दी जाती है। दुर्गा पूजा में देखे ही होंगे कि कलश स्थापना के लिए लोग कितना परेशान रहते हैं, पंडित जी की बहुत खुशामद करनी पड़ती है। पंडित जी भी कहते हैं 21,000 लेंगे तो आएंगे तो 9 दिन पूजा कराएंगे। बताइए ये कलश क्या है? मंदिर का जो कलश रहस्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कलश? कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाहिता, मूले च स्थिते ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्थिता, कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, सप्तद्वीपा वसुंधरा। यह कलश यूनिवर्स है। भारत के लोगों को पता था 7 समुद्र है, तभी तो इस मंत्र में है सप्तद्वीपा, 7 द्वीप रूपी वसुंधरा इसी कलश में है। इसका मुख भाग विष्णु है, कंठ भाग रुद्र है, मूल इसका ब्रह्मा है, इसकी जो कुक्षी है उसमें सारी मातृदेवियां हैं। ये कलश है क्या? सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को भी समाहित किए हुए है। तो मंदिर में जो कलश है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो भी ब्रह्मांड और सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इस प्रकार से क्या समझ सकते हैं कि टेम्पल मेटाफिजिकली रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ द पुरुषा एंड ऑल्सो द होल यूनिवर्स। लेकिन अब थोड़ी सी बात करें, बॉडी ऑफ द पुरुष है तो कैसे इसको समझेंगे? पुरुष के शरीर में क्या क्या होता है? पैर होता है, पाद, जंघम, जंघ। तो किसी फिगर से समझ जाए कि विराट पुरुष के शरीर और मंदिर का क्या संबंध है। हम बताते हैं। मंदिर के सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं पाद, यानी कि पैर। फिर उसके ऊपर के भाग को कहते हैं जंघ। फिर उसके ऊपर के भाग को कहते हैं कटी, यानी कमर, वेस्ट लाइन। फिर उसके ऊपर के भाग को कहते हैं स्कंध, यानी शोल्डर। फिर उसके ऊपर के भाग को कहते हैं गल, यानी गला। दिख तो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। फिर उसके ऊपर के भाग को कहते हैं मस्तिष्क, और उससे भी ऊपर के भाग को कहते हैं शिखा। शिखा समझते हैं ना? नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। This is a cosmograph on that a temple is made. It is called mandala. Every temple is made over a cosmograph which is called mandal. The central point is called Brahma Bindu,
On that the cult image is installed. Mandal means the whole universe. अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, कहते हैं ना ये संपूर्ण सृष्टि मंडल है, तो ये मंडल के ऊपर बना हुआ होता है। नेक्स्ट, तो यह मंदिर एक मंडल पे आधारित होता है और मंदिर के प्रमुख भाग क्या क्या है ये हमें जानना है। वो विराट पुरुष के अंग हैं। यस, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज शो। यस, you can see the temple has all important limbs of the Virat Purush, like Pad, like Jangham, like Kati, like Skandha, also Gal, then Shikha. Shikha means this hair tuft. Next slide. विराट पुरुष और मंदिर का सारा लिम्ब पैरेलल दिखाया गया है। मनुष्य के, विराट पुरुष के शरीर के जैसे जैसे अंग हैं पाद से शिखर तक, वैसे ही मंदिर के अंगों का नाम होता है। उसके सूत्र भी हैं। गर्भगृहम तु देवस्य शरीरम, गर्भगृहम तु देवस्य शरीरम प्रतिमा जीव उच्यते। प्रतिमा जीव ही है, जीवात्मा ही है। प्रतिमा जीव उच्यते, जीवात्मा ही है। उपपीढ़म चरण कारकम, मंदिर का जो उपपीठ है वह चरण है। अधिष्ठानम जानुमंडलम, और जो उसका अधिष्ठान है वह उसका जंघ है। अंत में क्या कहते हैं? विश्वरूपम च स्मृतम, विश्वरूपम च स्मृतम। यह सारा मंदिर वस्तुतः ब्रह्मांड ही है, विश्वरूप ही है। तो इसलिए मंदिर के सभी अंगों का नामकरण विराट पुरुष के लिंब के ऊपर है, अंग के ऊपर है। इस डिस्कोर्स को मैं यहीं विराम देता हूं। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। Thank you, sir, for this wonderful talk. Now the session is open for queries. If anyone has any question or doubt, kindly ask sir. किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही गहराई से चीजों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गहराई से समझाया नहीं? नहीं सर, बहुत 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 ऐसी चीजें जो हमको पहले पता नहीं थी। आपको पता थी, आपने डिस्कस ही नहीं किया था। ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं। सर संस्कृत में ऐसे कोई नहीं समझाया था। अच्छा, तो संस्कृत के बिना मंदिर और भारत, ये दो चीजें तो समझ नहीं आएंगी कभी। संस्कृत जाने बिना भारत भी समझ में नहीं आएगा और मंदिर भी समझ नहीं आएगा, है ना। भारतम भव्य मंदिरम, भारतम भास्वरम मंदिरम। भारत साक्षात मंदिर है, भारत भव्य मंदिर है, भारत भास्वरता का मंदिर है। इसलिए भारत से ही भारती बनी है। द गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती पूजा नजदीक है। सरस्वती का एक नाम भारती भी है, अर्थात नॉलेज ऑफ इंडिया इज नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। कितनी विराट कल्पना रही होगी भारत के पीछे। हम लोग झूठी कहानी पढ़ने लगे, जो झूठ मूठ बताया गया कि दुष्यंत के बेटा भरत था, वो भरत के नाम पे भारत पड़ गया। अरे कमाल है यार। भा मतलब भास्कर, भा मतलब भास्वर, जो भास्वरता में रत है, जो निरंतर प्रकाश की खोज में है, अन्वेषण में है, वो भारत है। और भारत से भास्वर कुछ भी नहीं। सर पूछना चाह रही थी मैं, सर एक्चुअली सर जो आपने ये दिया है, क्या ये पेपर हमें पढ़ने को मिल सकता है? अभी जो बताया सुनकर तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती। पेपर में तो बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पेपर में बहुत नहीं मिलेगा। आप स्टेला क्रैमरिस की द हिंदू टेम्पल थोड़ा पढ़ सकते वही हैं। रेफरेंसेस और चाहिए होंगे आपको, कोट करने के लिए भी रेफरेंसेस चाहिए होंगे सर, अगर कहीं नहीं, किसी पेपर में मुझे तो बिल्कुल कोट नहीं कीजिए। हमने क्या ऐसा नहीं कह दिया? नहीं वो सर। तो आप स्टेला क्रैमरिस को पढ़िए, द हिंदू यस टेम्पल, और ऑल अबाउट हिंदू टेम्पल। एक बड़ी पतली सी किताब है, 11 रुपए की मात्र।
यस सर, है सर। हाँ, ये रामकृष्ण मिशन से छपती है, थोड़ा बहुत उसमें आपको बेसिक मिलेगा, और है सर ना। और कोई रेफरेंस बता दीजिए सर। इतना बहुत है। ओके सर, थैंक कृष्णदेव जी की किताब पढ़िए, हिंदू यू। टेम्पल पे। कृष्णदेव जी की किताब पढ़िए, स्टेला क्रैमरस की पढ़िए, स्वामी हंसानंद की पढ़िए, ऑल जी, अबाउट हिंदू टेम्पल जी। श्योर सर। Namaskaram, sir. I'm Kavya. Sir, you said about five elements of our Yes, temple is a representation of five elements, and you said about every element. But when it came to water, I पृथ्वी, need, पृथ्वी sir. टेम्पल इज मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक और वुड, सो दैट रिप्रेजेंट्स अर्थ। Sir. Yeah, I have explained what is Akash, what is Vayu. Akash is represented by the dhvani, the sound, and also the ghanta dhvani, mantra dhvani, and shankha dhvani. You should not say that mantra dhvani is a Hindi term; it is a Sanskrit term. So whether you are from Kerala or from Kashmir or from No, Gujarat sir. or I'm some, I'm from you will Andhra have to Pradesh. understand these terms. So Akash is represented by mantra dhvani and ghanta dhvani, also shankha dhvani. Vayu is represented by Khechar Gandharvas, celestial, flying celestials. Agni is represented by Vedika, the shakal, the platform of that temple is created. The form of temple is also the form of Agni, and it is also represented by Deepak. Then we have fourth element, water. It is represented by Ganga Yamuna images, also by Kalash, and by many other elements. Prithvi is represented by the material of that temple is made. So it is made of a stone, brick, or kastha. Kastha means wood. It is the fifth element that we call earth. Is it Thank you. clear now? Yes, sir. Sir, I have also one query. Sir, what do you think about modern days temples? आपको क्या लगता है ये 5 elements जो हैं subliminal elements? टेम्पल इज ए रिचुअल कॉस्मोग्राफ, जो मंडल आपने देखा है, टेम्पल इन इटसेल्फ इज ए रिचुअल कॉस्मोग्राफ, and it should be based on shastric principle. The making should be based on shastric principles. I don't find any temple being made in this country on shastric principles. तो ये तो Sir, एक, जितने भी ancient temples हैं, we can see yes, of Makar course, Vahini and of course, Kashyap Vahini and everything. The carvings on exterior walls, all the figures which are there. But in today's time, in modern times, we didn't find anything like that. वो मंदिर का रहस्य मूर्ति से ज्यादा बड़ा कुछ और है. That is the direction, that is understanding of Jyotish. It should be based on understanding of Vastu and Jyotish. तो वास्तु और ज्योतिष का जो बहुत बड़ी संकल्पना है भारत की, उसके अनुसार मंदिर नहीं बन रहे हैं. तो वो प्लैनेटरी पोजीशंस को ध्यान में रख के, और मंदिर को किस अक्षांश देशांतर पे बनना चाहिए, उससे सूर्य का सायंकाल प्रभाव, प्रातःकालीन प्रभाव, अलग अलग समय में दिग्पालों की मूर्तियों पर प्रभाव, गवाक्षों के माध्यम से वो कैसे मंदिर तक आएंगे, सूर्य का प्रकाश, ये सब कुछ निर्धारित आज नहीं होता है. यदि आप बृहदेश्वर मंदिर देखेंगे तो सायंकाल में शिव का जो प्रदोष नृत्य की मूर्ति है, पश्चिम दिशा से सूर्य का प्रकाश वहीं आके केंद्रित होता है. यदि कंदरिया महादेव मंदिर के गर्भगृह में 6 बजे खड़े होंगे तो 6 बजे सूर्य का प्रकाश सीधे लिंग पर आता है और रिफ्लेक्ट होकर आता है. तो यह एक बहुत बृहद वास्तु, शिल्प और ज्योतिष का विषय है. और अभी जो मंदिर बन रहे हैं उसमें इनके लिए कोई खास जगह नहीं है. वो तो स्पष्ट है कि जैसे तैसे बन जाते हैं, बन जा रहे हैं. अब उनकी कौन सी प्राण प्रतिष्ठा की सारी महत्वपूर्ण विधियों का पालन हो रहा है, कौन से वो मंडल पे बनाए जा रहे हैं, परमशायिक मंडल कौन सा आर्किटेक्ट जानता है, कौन सा मिस्त्री जान रहा है जो बना रहा है उसके ऊपर.
मंदिर बनाने की प्रक्रिया में जितनी विधियां हैं, वहां हल से कैसे जुताई होनी चाहिए, उसके बाद उसमें भूमि परीक्षण कैसे होना चाहिए, अंकुरार्पण कैसे होना चाहिए, उस लैंड को, उस जमीन को जागृत करने की विधियां हैं, उसकी जागृति कैसे हो, उसके उसके लिए कोई कार्य थोड़ी हो रहा है। तो इसलिए मंदिर बन रहे हैं, वो मंदिर रूपात्मक संरचनाएं हैं, मंदिर नहीं। सर एक लास्ट है। जी। सर जैसा जो हमारा बेल्ट है ये पूर्वांचल का बेल्ट है, तो जैसे हमें जो बच्चे मिलते हैं पढ़ाने के लिए वो हिंदी बेल्ट से आते हैं। तो किताबें जो हमारी पास है, जैसे अभी हमने बताया, आपने बताया कृष्णदेवा है, ये जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, तो हम उन्हें क्या सब क्या क्या बताएं? पूर्वांचल के ही तो थे, कृष्णदेव बिहार के ही तो थे। वो सर वो ठीक है, बाद में हम अपने वही बच्चे अच्छा को इतना अंग्रेजी लिखे, कृष्णदेव से वो अच्छा तो कौन ठीक, लिखेगा। नहीं सर, तो वो भी एक हिंदी बेसिक मीडियम के स्टूडेंट थे। बेसिक नॉलेज अगर हम बच्चों को देना चाहे तो हम जो आपने अभी बताया, जो टॉपिक बताया, उसके लिए अगर हिंदी में हम किताबें बताएं बच्चों को तो सर क्या बता सकते हैं? बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी जी से पब्लिश्ड है मंदिर और गुहा वास्तु पर पुस्तक, एक तो वो पढ़ सकते हैं, और केडी सबसे वास्तु अच्छी अच्छी जो किताब इस है वो जी जी भारतीय कला, प्रोफेसर उदय नारायण राय, सर, ये लोक सब तो भारती। मिल जाती है सर, ये सब तो मिल जाती है, दोनों और मिल क्या जाती पढ़ेंगे, प्रोफेसर उदय नारायण राय से ज्यादा तो आप नहीं पढ़ा है। दीजिए। ओके सर, ओके प्रोफेसर सर, Okay. उदय Now, थैंक यू नारायण। सर। Yes, sir. Thank you so much, everyone. Thank you, all the participants. A heartfelt thanks to you, Anand sir. It was quite a wonderful session. जय हिंद, जय भारत।